Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the third lecture of biology, and today's topic is gaseous exchange in humans. In previous lectures, we have discussed what is gaseous exchange, that is, the exchange of oxygen and carbon dioxide between living organisms and their environment. And then we have discussed gaseous exchange in plants. Now, we have to understand this that gaseous exchange is important for the process of cellular respiration, and cellular respiration is important for production of energy, and this energy is important for different life activities which are important for life. And what is life? Life is the time period in which living organism shows these characteristics called living characteristics like growth, reproduction, movement, etc. Now we have come to a point that gaseous exchange is important for respiration, and in humans or in animals gaseous breathing is important for gaseous exchange. Unlike plants, in plants gases are being exchanged by a simple process called diffusion, because there is no specialized system in plants for respiration. So we have discussed it before that in humans or in animals there are specialized respiratory system that helps in respiration. Why it is called respiratory system? Because this system helps the process of respiration. Without it, respiration would not be possible. Like for aerobic respiration, oxygen is required, and who provides oxygen for respiration? This whole system that consists of lungs and air passageways. So we can broadly divide the respiratory system into two main components: air passageways that bring air towards lungs, and the main organ where gases are being exchanged between body of animals and their environment. Today we will discuss about the first component, air passageway. It consists of different parts. We will discuss about each part, their structure and their functioning. So the first part is nose, second one nasal cavities, pharynx. After pharynx, the part is known as larynx, through which air moves, and then the other part is trachea, also called windpipe. Then air moves from trachea to bronchi, the two branches of trachea, and then bronchi divided into bronchioles, and these bronchioles are open up into a air sac, the inner surface of lungs. So we will discuss in detail one by one. So first of all, about nose. The opening of nose are called nostrils, and the inner hollow space in nose are called nasal cavities that are separated by a bone partition. Now, this nasal cavity is divided into two chambers, and the internal lining of nasal cavity contains hairs and mucus. Mucus is a watery fluid, jelly-like structure. What is the function of hair and mucus? They trap the dust
particle present in the air, incoming air, or microorganisms, germs, etc. And the other function of nasal cavity is that the wall of nasal cavity's internal wall is richly supplied with blood vessels that warm and moisten the incoming air. अब एयर को वार्म करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाहर की एयर का टेम्परेचर डिफरेंट है और बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है, और एकदम से अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया तो सारी एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होंगी। तो इनकमिंग एयर को वार्म करना ज़रूरी है, जो कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे मौजूद ये काम करती हैं। अब नेज़ल कैविटी की ये फॉर एग्ज़ाम्पल नोज़ है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये नोस्ट्रल है, दो ओपनिंग्स, इनको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। ये ओपन होती है अंदर नोज़ में, ये नेज़ल कैविटी है। दो चैम्बर्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होता है, एक राइट। अब यहाँ ये कैविटी दोबारा ऐसे दो ओपनिंग्स हैं। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं, ये इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं, और ये अंदर जाके एक मस्कुलर पैसेज ऐसे मौजूद है जिसमें ओपन होती है, और इस पैसेज को हम क्या कहते हैं जी? फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स तकरीबन 4.5 इंचेस ये एक पैसेज है, और इसकी जो लाइनिंग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से हुई होती है, यानी कि इसकी वॉल के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ऐसे सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब म्यूकस का काम हमने देख लिया कि डस्ट को या जर्म्स वगैरह को ट्रैप करना है, अंदर जाने से रोकना है। अब फेरिंग्स में और स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, और इनका काम भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना, बॉडी में दाखिल होने से रोकना। अब फेरिंग्स के बाद एयर मूव करती है एक तीसरे हिस्से की तरफ, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स फंक्शन। अब लैरिंग्स का क्या काम होता है? डायग्राम पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। ये आपकी नेज़ल कैविटी है, ये ओपन होती है यहाँ पे फेरिंग्स में, दिस पार्ट इज़ फेरिंग्स, और ये नीचे सेप्टम है, ठीक है। एक वॉल है जिसने माउथ कैविटी और नेज़ल कैविटी को आपस में सेपरेट किया हुआ है। अब ये दोनों जाके एक ही पैसेज में ओपन होती हैं, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। अब ये फेरिंग्स यहाँ तक जब आता है तो ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होके एक जो ट्यूब जाती है वो चेस्ट कैविटी से गुज़रते हुए यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में पहुँच जाती है और स्टमक में ओपन होती है, और इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। इस ट्यूब को हम, इस पैसेज वे को हम ईसोफेगस कहते हैं या फूड पैसेज कहते हैं। जबकि दूसरा जो पैसेज है उसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं, और उसको हम लैरिंग्स का नाम देते हैं। यानी कि फेरिंग्स जो पैसेज वे है वो डिवाइड हो जाता है दो में, एयर पैसेज में और फूड पैसेज में। एयर पैसेज के फर्स्ट पार्ट को हम लैरिंग्स कहते हैं, और लैरिंग्स की जो अंदर कैविटी है, जो स्पेस है, उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस की ओपनिंग के ऊपर एक लिड होती है, स्पून टाइप लिड होती है, जो कि इसको क्लोज रखती है जब हम फूड स्वेलो करते हैं। उस लिड को हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। जिस तरह आपकी आँख की आई लिड है, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल
या कोई स्ट्रक्चर आपकी आँख की तरफ बढ़ती है तो ये आईलिड क्लोज हो जाती है, उसको अंदर जाने से रोकती है। सिमिलरली कोई भी लिक्विड या वाटर जब इस एयर ट्यूब में दाखिल हो, उसको एपिग्लोटिस उस पैसेज वे को बंद कर देता है ताकि इसमें दाखिल ना हो सके। क्योंकि अगर यहाँ पे लंग्स के अंदर वो लिक्विड या फूड चला गया तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा और इस तरह गैसियस एक्सचेंज इफ़ेक्ट होगी। अभी दूसरी बात कि जो फूड पैसेज वे है वो बैक साइड पे है, डोर्सल साइड पे। एयर पैसेज वे वेंट्रल साइड पे है, फ्रंट साइड पे है बॉडी की। अब नेक्स्ट लैरिंक्स जो है इसको वॉइस, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेजिनियस बैंड्स होती हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जब एयर बाहर की तरफ प्रेशर से मूव करता है, बॉडी से बाहर निकलता है, तो ये वाइब्रेट करते हैं कार्टिलेजिनियस बैंड्स, फाइब्रस बैंड्स, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और दूसरा काम लैरिंक्स का क्या है कि फूड को प्रिवेंट करना इस पैसेज वे में दाखिल होने से, एयर पैसेज वे में दाखिल होने से फूड और लिक्विड को प्रिवेंट करना। पहला काम इंजेस्टेड फूड और लिक्विड को प्रिवेंट करना ताकि वो एंटर ना हो सके, जबकि दूसरा काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना। अब लैरिंक्स के बाद जो हिस्सा स्टार्ट होता है एयर पैसेज वे का, उसको हम ट्रेकिया कहते हैं या फिर विंड पाइप कहते हैं। अब ये जो ट्रेकिया है या विंड पाइप है, इसमें कार्टिलेजेस होते हैं और ये कार्टिलेजेस सी शेप्ड होते हैं। तकरीबन 16 to 20 कार्टिलेजेस होते हैं ट्रेकिया में। और ट्रेकिया की इनर सरफेस भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है। सिलिएटेड मेम्ब्रेन होती है। सिलिएटेड मीन्स, सिलिया हम कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल सरफेस से राइज होते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूसली फ्लिप करते हैं बैक एंड फोर्थ, ताकि कोई भी पार्टिकल जो कि म्यूकस में ट्रैप हुआ है उसको वापस ऊपर की तरफ, माउथ की तरफ लेके जाया जा सके। अगर सीलिया ना होते तो ये डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लंग्स में एंटर हो जाते थ्रू एयर पैसेज में। ये कार्टिलेजेस जो कि प्रेजेंट है ट्रेकिया की वॉल में, इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये इस पैसेज वे को, इस पाइप को, इस ट्यूब को ओपन रखता है, कोलैप्स होने से बचाता है, ताकि एयर पैसेज वे क्लोज ब्लॉक ना हो जाए, ओपन रहे। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये सर्कुलर कार्टिलेजेस नहीं है, बल्कि ये सी शेप्ड है, यानी कि एयर प्रेशर से भी अगर आ रहा है तो ये एक्सटेंड हो सकें, ट्यूब को एक्सटेंड कर सकें, ट्यूब फट ना जाए। ठीक है, अगर ये क्लोज्ड होते, एयर प्रेशर से आता, तो ये ट्यूब बर्स्ट भी हो सकती थी। तो इसके बहुत सारे, आगे आप डिटेल में इसको देखेंगे। अब इसका जो एंड है ट्रेकिया का, वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, यानी कि ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है एंड पे, और इसकी ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं और सिंगल ब्रांच को ब्रोंकस कहते हैं। अब राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाती है और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंटर हो जाती है। ब्रोंकाई के जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, यानी कि पहला जो हिस्सा है ब्रोंकाई का, उसमें कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, लेकिन ट्रेकिया से स्मॉलर होते हैं, क्योंकि ब्रोंकस का साइज़ भी स्मॉलर होता है, इसमें प्रेजेंट कार्टिलेजेस भी
smaller होते हैं those than of trachea. Each bronchus on entering lungs divides and redivides progressively into small bronchi. यानी कि हर ब्रोंकस डिवाइड रीडिवाइड होता है और छोटे छोटे ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह प्लांट की आप स्टेम देखें, डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में, ब्रांचेस की मज़ीद ब्रांचेस बन जाती हैं, ये रीडिवीजन हो रही है, फिर उस रीडिवीजन की भी डिवीजन होती है। ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो सिमिलरली जो ब्रोंकाई लैंगमेंटर हो रही है उसकी भी ऐसे ही डिवीजन्स होती हैं। और जब 1 मिलीमीटर से कम हो जाए, 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाए डायमीटर ब्रोंकस का, इसका डायमीटर 1 mm या इससे कम हो जाए तो ब्रोंकस को फिर हम एक ख़ास नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स, छोटे ब्रोंकस, स्मॉलर ब्रोंकाई। अब ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजेस नहीं होते बल्कि ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, आपके बोन्स वगैरह के साथ अटैच्ड हैं। कार्डियक आपके हार्ट के मसल्स जिनसे आपका हार्ट बना हुआ है, और स्मूथ मसल्स आपकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी ब्लड वेसल्स, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। तो इसी तरह ब्रोंकियोल्स भी स्मूथ मसल से बने हुए। ब्रोंकियोल्स भी रीडिवाइड होते हैं और ओपन हो जाते हैं एयर सेक में। मैं आपको दिखाता हूँ एयर सेक। ये एयर सेक है, ये एक ब्रोंकियोल आ रहा है, ये एक एयर सेक में ओपन हो गया। तो इस तरह हज़ारों लाखों ब्रोंकियोल्स इन एयर सेक्स में ओपन हो रही। अब हर एयर सेक में छोटे छोटे हिस्से होते हैं, पोर्शंस होते हैं। ये एक पोर्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इन पोर्शंस को हम अल्वियोलाई कहते हैं, या अल्वियोलस सिंगुलर, इसको हम अल्वियोलस कहते हैं। अल्वियोलस के गिर्द नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, और ब्लड कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। इसी तरह अल्वियोलाई की मेम्ब्रेन भी थिन होती है, तो यहाँ पे इजीली डिफ्यूजन हो जाती है। यह अल्वियोलाई इनर सरफेस बनाती हैं लंग्स का। अब गैसेज यहाँ पे एक्सचेंज होती है, गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे होता है बिटवीन ब्लड एंड अल्वियोलाई। अब जो बात समझने वाली है यहाँ पे वो ये है कि ये जो अल्वियोलाई होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। अगर ये पार्टीशंस ना होती, एक एयर सेक ही होता, तो ये सरफेस थोड़ा सा कम थी। अभी ये देखें इतने सेगमेंट्स हैं, अल्वियोलस हैं, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस है गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए। तो गैशियस एक्सचेंज इससे एफिशिएंट होती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने बात की कि इस स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से गैशियस एक्सचेंज होता है ह्यूमंस में, और इस सिस्टम को 2 मेन कंपोनेंट्स में हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है, एयर पैसेजवेज एंड लंग्स। आज हमने एयर पैसेजवेज के बारे में पढ़ा। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नोज़, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी फंक्शनिंग देखी। फेरिंग्स, ठीक है, उसका हमने स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखी। फिर उसके बाद लैरिंग्स, इसके हमने फंक्शंस देखे कि वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है,
और इसके अलावा प्रिवेंट करता है एयर पैसेज वे को। फिर हमने देखा ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया में जो कुछ हो रहा है वो हमने डिस्कस किया। फिर ब्रोंकाई हमने डिस्कस किया, ब्रोंकाई डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स एयर सैक्स में ओपन होती हैं, और एयर सैक्स में बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान। तो मैं साथ में पिक्चर भेज रहा हूँ जिसमें हर एक एयर पैसेज वे का नाम के साथ आगे फंक्शनिंग लिखी हुई है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह